Siddhanta Saraswati Vijayate Gauriya Goshtipati Bande Guru Padodandam Bhakta Binda Samanitam Sri Chaitanya Prabhum Bande Nityananda Sahoditam Sri Nandanandanang Bande Radhika Charnodayam Gopijano Samayuktam Bindavanam Manoharam Vanchakalpataruvasya Kipasindhu Bhavaccha Patitanang Pavunebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Mukhaṁ Karoti Vachalang Pangum Langhayatagirim Yat Kipatamahang Bande Paramananda Madhavam Vrindavan Tulsidev Vaidya Kesava Saja Shna Bhakti Pade Devi Sattvattvaye Namo Namaha Narayana Namaskritta Naram Chaiva Narottamam Deving Saraswati Vyasam Tato Jayo Mudire Sankirtane Krishna Kathopadeshe Gauriya Patrasya Prakasane Sadhanurakta Guru Bhakti Yukta Bhakti Pramodaksha Jagod Varun Deyam Sada Paribhavagnam Avishtadoham Tethas Padam Siva Virinjanutam Saranam Vetatiham Punatopal Bhavadibhutam Bande Mahapurusate Charunar Vindam Jat Pad Pallavanaka Chandamani Chataya Vispurijita Kimapika Pavadu Swadars Purnanuragara Susagara Murti Saradhika Mai Kada Kipam Karusi Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Binda Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Binda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Ajanulambita bhujau kanaka bodhatu Sankirtanai kapitaro kamala yutakshu Vishambaro dijavaro jugodharma palo Bande jagat priyakaro karuna bhataro Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Namami Gange Tava Pad Pankajam Sura Suroir Vandito Diparupam Bhuktin cha muktin cha dada sinitam Bhavanurupena sada naranam Ganga taranga ramaniya jata kalapam Gauri nirantara vibhushi tabam bhagam Narayano priyamanangamadhapaharam Varanasi Purapati Bhajavi Sanatham Vagisha Vadane Lakshmi Jassa Vaksasi Yasyaste Hidaya Sambhid Tvam Nishingamaham Bhaje Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare
বৈগুণ্য কীটকলিত পৈশূন্য ব্রৌণ প্রেরিত দৈনার্ণবে নিমগ্ন হম শ্রী চৈতন্য বৈদ্যমাশ্রয়। বৈগুণ্য কীটকলিত পৈশূন্য ব্রৌণ পীড়িত দৈনার্ণবে নিমগ্ন হম শ্রী চৈতন্য বৈদ্যমাশ্রয়। গৌড়ীয় গোস্বীপতি श्रीशिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद परमहंस जगत गुरु जी ने बताए, ये जड़ जगत का आदमी श्रील वृंदावन दास ठाकुर महाशय का तबे लाथी मारू तार माथार ऊपरे, मतलब वृंदावन दास ठाकुर महाशय जी ने जो चैतन्य भागवत में बताया, ऐतो परिहार्यो जे पापी निंदा करे। इतना समझाने का बावजूद, इतना डॉक्यूमेंट्स, इतना प्रमाण देने का बावजूद अगर कोई मानने के लिए तैयार नहीं है तो मैं उसका सर पर लाठी लगाऊं। ये कैसा बात है? ये भी कोई बात हुई? ये भी कोई बात हुई है? लाठी मरे, ये साधु है क्या? और जब कृष्णदास कबीराज गोस्वामी जी ने बताए, जब कृष्णदास कबीराज गोस्वामी जी ने बताए, जगाई मादाई होइते मुइसे पापिष्टो, पुरुषेर कीट होइते मुइसे लगिष्टो, मोर नाम जेई लय तार पाप হয়, मोर नाम जेई শুনে তার পুণ্য ক্ষয়। এমন নিঘৃণ্য মোরে কিবা কিবা করে, এক नित्यानंद बिनु जगत माझारे। ये दो महाजनों का बातों में ध्यान देना क्या फर्क है। एक तो श्रील वृंदावन दास ठाकुर महाशय कह रहा है, इतना समझाने का बावजूद, इतना प्रमाण देने का बावजूद अगर कोई मानने के लिए तैयार नहीं है ये परात्पर अखिल ईश्वर भगवान है, तो मैं उसका सर पे लाठी लगाऊं। ऐतो परिहारो जे पापी निंदा करे तबे लाठी मारू तार सिरेर ओपरे, ऐसा प्रमाण है, ऐसा लिखा। और कृष्णदास कबीराज गोस्वामी जी ने बताया, जब मैं जगाई मादाई से भी गिरा हुआ इंसान हूं, मेरा नाम जो कोई लेता है वो सर्वनाश हो जाता है उसका। मेरा नाम जो सुने, मेरा नाम जो ले तो उसका पाप होता है, मेरा नाम जो सुने उसका पुण्य क्षय होता है। मोर नाम जय सुने तार पाप है। ऐसा करके दैन्य करके बताया, ऐसा निघृण्य हूं, घृण्य नहीं, मैं जितना निघृण्य हूं, मेरे को कौन कृपा करेगा। एक नित्यानंद बलराम छोड़कर, एक नित्यानंद बलराम छोड़कर कोई कृपा करे मेरे को। मोर नाम जेई लय तार पुण्य क्षय, मोर नाम जेई सुने तार पाप है। मेरा नाम सुनने से, ऐसा करके दैन्य बताया। और वृंदावन दास गुरु जी महाराज बाहरी विचार में लगता है कि अभिमान दिखाया, पूरा कोई अगर ना माने उसका सर पर लाठी लगाऊं। पोपत कह रहे हैं ये दोनों का ही विचार, दोनों महाजनों का कृपार में, ये दोनों महाजनों का विचार में कोई फर्क नहीं है। ऐसा नहीं कि वृंदावन दास ठाकुर महाशय को अहंकार, ऐसा नहीं कि वृंदावन दास ठाकुर महाशय अपना अहंकार प्रकाश कर रहे, लाठी मारू, ये क्या बात है? ये भी कोई बात हुई? और कृष्णदास कबीराज गोस्वामी दैन्य प्रकाश कर रहे, दोनों का भाव में थोड़ा अंतर दिखाई पड़ता है। पोपात बोले दोनों महाजनों का भावों में कोई फर्क नहीं है, एक ही है। वृंदावन दास ठाकुर महाशय जो बोला ये भी दैन्य है,
वृंदावन दास ठाकुर महाशय जी ने बोला है ये दैन्य है, जरूर। वो कैसे हम बताएंगे। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो दैन्य बताया है ये भी दैन्य है, दोनों में कोई फर्क नहीं। जैसे आम आदमी श्रील गौर किशोरदास बाबा जी महाराज का वैराग्य, श्रील सच्चिदानंद भक्ति ठाकुर का युक्त वैराग्य, और ये लोगों का विचार में उल्टा हो जाता। ये लोगों का विचार है जो कृष्णदास गोस्वामी ये दैन्य प्रकाश किया है, फालतू आदमी है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रभुपाद कह रहे हैं जो अपना परिचय दिया है, जो अपना परिचय दिया है जो फालतू आदमी है, जो खुद अपना परिचय दिया है कि फालतू आदमी है, उसका बातें सुनकर क्या करे। आज जो वृंदावन दास ठाकुर मत वो तो अहंकारी है, वो तो जेंटलमैन नहीं है, उसका बात सुन के भी क्या करे। प्रभुपाद कहते हैं देखो वृंदावन दास ठाकुर महाशय जी जो बताया है ये भी दैन्य है, ये भी दैन्य है। वृंदावन दास ठाकुर महाशय का कहना है इतना समझाने का बाद, इतना प्रमाण देने का बाद अगर कोई मानने के लिए तैयार नहीं है तो अपना चरण का धूल, अपना चरण का धूल इसका मस्तक में देकर, तो अपना चरण का धूल इनके मस्तक में देकर इसका बुद्धि शुद्धि करे। अपना चरण का धूल इस मस्तक में देकर इसको पवित्र बनाए। क्योंकि जब तक वैष्णव चरण रेणु मस्तक में नहीं स्पर्श होता तब तक अपराकित जगत का कुछ समझ में नहीं आता। जब तक वैष्णव चरण रेणु किसी का मस्तक में नहीं पड़ता तब तक इसका बुद्धि शुद्धि नहीं होता। इसीलिए वृंदावन दास ठाकुर महाशय के अंदर में जीवों के लिए जितना दया है, वृंदावन दास ठाकुर महाशय के अंदर में ये तमाम जीवों के लिए जितना दया है, करुणा है, ये कहने का बात नहीं। इतना करुणा, इसको अभिमान बोल के समझना उचित नहीं है। इसको अभिमान बोल के समझना उचित नहीं है। ये दैन्य है, ये अहंकार नहीं है। जब प्रभुपाद इतना कड़वा बात बोलते हैं तो लगता है कि अभिमान है। अभिमान नहीं है, अभिमान नहीं है। प्रभुपाद कहते थे अगर सर्वांगीण रूप में शरणागत भक्त है, उसका अंदर में इतना दैन्य है, इतना दैन्य है कि मत पूछो। जब भी आगे चलकर अकैत्व सत्व कठोर ये सच्चा प्रवचन बोल सकता है। नहीं तो त्रिनाद भी सुनी जगह नहीं है, जिसका में दैन्य नहीं है, वो बोल नहीं सकता। बोले कैसे, इसको व्याख्या करो। महाराज तीनादुपी सुनीच का मतलब क्या है? तीनादुपी सुनीच भाव का मतलब है, प्रभुपाद जी ने व्याख्या किया, संपूर्ण रूप में जो प्रतिष्ठा का गंदगी, संपूर्ण रूप में प्रतिष्ठा का गंदगी जिसका अंदर में नहीं है, दिल में, वो है तीनादुपी। इसका नाम है तीनादुपी। तीनादुपी का मतलब ये नहीं कि कुछ गिर गिराया, कपट भाव दिखाया, क्षमा करे, ऐसा भाव को प्रभुपाद त्रिनादुपी सुनीच भाव नहीं बताया। तीनादुपी सुनीच भाव समझने के लिए देखना पड़ेगा किसका अंदर में लाभ पूजा प्रतिष्ठा के लिए बिल्कुल जगह नहीं है। लाभ पूजा प्रतिष्ठा के लिए बिल्कुल जगह नहीं है, बिल्कुल गंदगी नहीं है, ये तीनादुपी। और प्रभुपाद जी ने और बताया, जब किसी का अंदर में
बिल्कुल लाभ पूजा प्रतिष्ठा का कोई गंदगी नहीं है, वही अपराकित जगत का अकोत्व सत्व प्रवचन बोल सकता है, बाकी आदमी नहीं। बाकी आदमी जिसका जिंदगी में लाभ पूजा प्रतिष्ठा चाहिए, बाकी जितना सारे प्रचारक है, जो कुछ भी है, ये अगर पक्का बोलने जाए, ऐसा अकोत्व सत्व प्रवचन बोलने जाए, ये लोग का लाभ पूजा प्रतिष्ठा नहीं आ सकता। ये लोगों का जिंदगी में लाभ पूजा प्रतिष्ठा आ नहीं सकता। इसलिए ये लोग कभी अपराकित सत्य प्रवचन बोल नहीं सकता, कठोर वचन बोल नहीं सकता। तो इसका माने क्या हुआ? मैथमेटिक्स का माफिक जो तिनाद भी है वही अकोत्व सत्य प्रवचन बोल सके, बाकी नहीं है। कृष्णदास कबीरदास गोस्वामी जी ने दैन्य कर दैन्य दिखाया, और ये दैन्य अभिमानी जो आदमी है, जो अभिमान जिन लोगों का अंदर में अभिमान है, जिन लोगों का अंदर में अभिमान है, वो लोग बोल रहे हैं कि जो लोग अभिमानी हैं बोल रहे हैं, देखो देखो क्या बात है, ये अपना परिचय दे दिया, इतना फालतू आदमी है। जगाई मादाई होइते मुई से पापिष्ठो, पुरुषेर कीट होइते मुई से लुविष्ठो। पुरुष मतलब टट्टी का जो कीड़े मकोड़े होते हैं, महाराज टट्टी का जो कीड़े मकोड़े होते हैं, कृष्णदास कबीरदास गोस्वामी इससे भी घटिया अपने को परिचय दिया। तो ऐसा फालतू आदमी इसका प्रवचन सुन के क्या करे? प्रभुपाद बताए, देखो अपराकित जगत में जिसका जितना दैन्य है, अपराकित जगत में जिसका अंदर में जितना दैन्य है, समझ लेना उसका अंदर में उतना ही भक्ति है। बृहद भागवतामृतों में श्रील सनातन गोस्वामी जी ने ऐसा दिखाया, जो जिसका अंदर में जितना दैन्य है उसका अंदर में उतना ही भक्ति है, आज जिसका अंदर में जितना भक्ति है उसका अंदर में उतना दैन्य स्वाभाविक है। ये देखो क्या बात है, जिसका अंदर में जितना दैन्य है उतना भक्ति है। भक्ति और दैन्य एक के साथ दूसरा जुड़ा हुआ है। जो भक्ति अमृतमयी भक्ति आस्वादन की है, उसका अंदर में दैन्य रहना स्वाभाविक है। जिसका अंदर में दैन्य है उसका अंदर भक्ति जरूर है, ये इसमें कोई छेद नहीं है। तो वृंदावन दास ठाकुर महाशय जी का जो कहना है, तो अबे लात मारेंगे, ये भी दैन्य है, ये भी दैन्य है। ये कितना बड़ा सैक्रिफाइस है, अपना चरण का धूली दूसरे का मस्तक में देकर इनके जो बुद्धि का शुद्धि बना दो, इसको भक्त बना दो, इसको रिहा कर दो जड़ जगत से, ऐसा विचार लेकर वृंदावन दास ठाकुर महाशय ऐसा बात बोला। इसमें अहंकार का कोई जगह नहीं है। चैतन्य चरितामृतों का पाठ करते करते हम लोग यहाँ तक नवम परिच्छेद तक आया है। नवम परिच्छेद बहुत दिन पहले चर्चा हो गया, उसका बाद फिर शुरुआत हो रहा है। तो नवम परिच्छेद से ही शुरू करें। यहाँ कृष्णदास कबीरदास गोस्वामी जी ने लिखा है, त्वं श्रीमत् कृष्ण चैतन्य देवं वंदे जगद्गुरुं जस्यानुकंपया स्वापि महाद्धिम संतरेत सुखम। वही श्रीमत् श्री कृष्ण चैतन्य देव जो जगत गुरु है भगवान, इनके चरण वंदना करे।
जिनके कृपा से जस्यानुकंपया स्वापी कुत्ता भी संतरितो महाधिन संतरित सुखम, जिनके कृपा बल से महा समुंदर भी पार हो जाता है। कौन? श्वा कुत्ता, कुत्ता कुत्ता कुकुर जो कुत्ता है वो भी महासमुंदर पार हो जाता। कौन सी समुंदर? कौन सी समुंदर? ये शास्त्र समुंदर। कौन सी समुंदर? ये शास्त्र समुंदर, सिद्धांत समुंदर। ये जो तत्व सिद्धांत है, जो शास्त्र समुंदर है, इसका बारे में बताया। आराम से पार होके जा सकता है, सिद्धांत समुद्र को पार करके जा सकता है, ऐसा बता। अनंत पारम किल शब्द शास्त्रम, अनंत पारम किल शब्द शास्त्रम, शब्द शास्त्र अनंत है, अपार, पार करना संभव नहीं है। अगर भगवान का कृपा हो जाए तो पार हो सकता। त्वं श्रीमत् कृष्ण चैतन्य देवं वंदे जगद्गुरुं, यस्यानुकंपया स्वापि महाधिम संतरे तो सुखम। जय जय श्री चैतन्य गौरचंद्रो, जय जय जयो जयाद्वैत जयो जय नित्यानंद, जयो शिवास आदि गौर भक्तगण, सर्वाभीष्ट पूर्ति हेतु जा स्मरण। भक्तगणों का स्मरण बंधन से जितना सारे अमंगल है हट जाता है। गुरु वैष्णव का, गुरु वैष्णव भगवान तीने स्मरण, गुरु वैष्णव भगवान तीने स्मरण, तीने स्मरण है विघ्न विनाशन, अनायास है निजो अभिष्टपुर। गुरु वैष्णव का स्मरण मात्र ही जितना सारे मुसीबतें हैं, समस्याएं हैं, सब हट जाता। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ, ऐसा प्रसाद लिखी चैतन्य लीला गुण, ये लोगों का कृपा बल से, इन लोगों का कृपा बल से मैं चैतन्य महाप्रभु का लीला लिखने का साहस, श्री चैतन्य महाप्रभु का लीला लिखने का साहस कर रहा हूं। लिखी चैतन्य लीला गुण, जानी व ना जानी कोरी आपन शोधन। हमारा कितना ज्ञान है, कुछ भी नहीं, फिर भी मैं अपने को शोधन बनाने के लिए, अपने को पवित्र बनाने के लिए, जानी व ना जानी कोरी आपन शोधन, अपने को पवित्र बनाने के लिए, अपने को पवित्र बनाने के लिए मैं कर रहा हूं। मालाकार स्वयं कृष्णो प्रेमामर कल्पतरु, स्वयं मालाकार जो माला बनाता है, मालाकार स्वयं कृष्ण हो। प्रेमामर, प्रेम अमर कल्पो तरु स्वयं, दाता भोक्ता तत्फलानम यस्तम चैतमाश्रय। मालाकार स्वयं कृष्ण, मालाकार स्वयं। और प्रेम अमर, प्रेमा अमर तरु, प्रेमा अमर तरु स्वयं, और दाता भोक्ता तत्फलानम यस्तम श्री चैतन्य माश्रय। मैं ये चैतन्य महाप्रभु को, इनके चरण आश्रय लेना चाहता हूं। जे मालाकार, मालाकार मतलब जो माला बनाता है कृष्ण, और प्रेम अमर, प्रेम जो कुछ भी है, प्रेम सब कुछ भगवान से ही आता है। भगवान छोड़ के कहाँ से आएगा? रसो वैश,
रसो एवहि अयम लब्धानंदी भवती। जितना सारे प्रेम है, रस है, सब भगवान से ही आता है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम मालाकार स्वयं कृष्ण प्रेमामर तरु स्वयं प्रेम अमर तरु स्वयं दाता भोक्ता तत्फलानम। श्री चैतन्य स्वयं मालाकार, मालाकार मतलब इधर उद्यान रक्षक, प्रोटेक्टर। जो फूल फल उद्यान में लगे हुए हैं, मालाकार जो माला बनाते हैं इसको भी बोलते हैं, और मालाकार बोलते हैं माली भी। उद्यान रक्षक यहाँ माने किया, मालाकार मतलब उद्यान रक्षक। स्वयं कृष्ण प्रेमामर तरु, कृष्ण प्रेम का अमर तरु अविनाशी वृक्षो तत्फलानम। ये वृक्षों का जो फल, वृक्षस्व प्रेम फलानम दाता भक्ता च स्वयं, भगवान स्वयं ही है। प्रभु कहे आमी विश्वम्भर, प्रभु कहते हैं कि मेरा नाम विश्वम्भर है, मेरा नाम विश्वम्भर। अनंत विश्व को जो पालन करते हैं ना, अनंत विश्व को पालन पोषण करते हैं, इसका नाम है विश्वम्भर। विश्व का जो भरण पोषण, विश्व का जो भरण पोषण, विश्व का देखभारी प्रोटेक्शन पालन जो करते हैं, उसका नाम है विश्वम्भर। प्रभु कहे आमी विश्वम्भर नाम धरी, नाम सार्थक कय यदि प्रेमे विश्व भरी। यदि अगर हम प्रेम के द्वारा विश्व को, हर जीवों को प्रेम दान करके उसको अमर बना दे, क्योंकि प्रेम छोड़कर जगत का कोई स्थिति नहीं है, प्रेमी है समाधान। प्रेम छोड़कर बाकी समाधान कुछ नहीं है। प्रभु कहे हमें विश्वम्भर नाम धरी, नाम सार्थक यदि प्रेमे विश्व भरी। यदि अगर हम प्रेम के द्वारा विश्व को भरपूर कर दी, प्रेम का बार ला सके, तो मेरा नाम सार्थक है। ऐतो चिंती लोईला प्रभु मालाकार धर्मो, ऐसा चिंतन करके माली का धर्म अर्थात उद्यान को रक्षक करने का जुमा ले लिया। ऐतो चिंती लोईला प्रभु मालाकार धर्मो नवद्वीपे आरंभिला फलोद्यान कर्मो। इतना चिंता करके महाप्रभु मालाकार अर्थात माली जो उद्यान को संरक्षण करते हैं, इसका जुमा निभाने के लिए स्वयं ये कर्म किया। ऐतो चिंती लोईला प्रभु मालाकार धर्मो नवद्वीपे आरंभिला फलोद्यान कर्मो। नवद्वीप का अंदर में फल का उद्यान निर्माण शुरू करेंगे। नवद्वीपे आरंभिला फलोद्यान कर्मो, नवद्वीप का अंदर में फल उद्यान, इसका संरक्षण प्रोटेक्शन देना, ये सब काम शुरू किया। नवद्वीप आरंभ मिला फलोद्यान कर्म, फल का उद्यान बनाओ, प्रेम का फल और सब वितरण करो। श्री चैतन्य मालाकार पृथ्वीते आनी भक्ति कल्पतरु रोपिला सिंची इच्छा पानी। श्री चैतन्य स्वयं मालाकार का धर्म लिया, अर्थात माली का धर्म लिया। ये धरती पर प्रेम कल्पतरु भक्ति कल्पतरु, प्रेम भक्ति का कल्पतरु लाया है। भक्ति कल्पतरु रोपिला सिंची इच्छा पानी, अपना इच्छा रूपी जो पानी है, इस पर सिंचन क्रिया। इच्छा रूपी पानी, भगवान का इच्छा मात्र सत्य होता है।
भगवान का इच्छा मात्र से ही कार्य संपन्न होता है। भगवान का इच्छा होने से ही कार्य स्वयं हो जाता है। चैतन्य मालाकार पृथ्वी हानि भक्ति कल्पतरु रोपिला सिंची इच्छा पानी। जो गोलोक का प्रेम है, गोलोकेर प्रेम धन, गोलोक का प्रेम धन उधर मिलता है। ये भक्ति कल्पतरु चैतन्य महाप्रभु लाके इधर रोपण कर दिया, रोपण, और अपना इच्छा पानी देके इसको सिंचन किया। एक वृक्षों को पानी चाहिए, हवा चाहिए और सूर्य का रोशनी भी चाहिए, तीनों चाहिए। भक्ति कल्पतरु रोपिला सिंची इच्छा पानी। जय श्री माधवपुरी कृष्ण प्रेमपुर, माधवेंद्र पुरीपाद कृष्ण प्रेम का पूर है। पूर मतलब पूरी, पूर मतलब सोर्स, जहाँ कुछ मिलता है, पूर। सो जयो जयो माधवेंद्र पुरी कृष्ण प्रेमपुर, जो कृष्ण प्रेम का पूर है। भक्ति कल्प तरुत्य प्रथम अंकुर। यद्यपि महाप्रभु ये भक्ति कल्प तरु वृक्ष धरती पर लाया, अपना इच्छा पानी देके उसको सेचन किया, ठीक है चलो। लेकिन फिर भी श्री चैतन्य महाप्रभु आने का पहले, फिर भी श्री चैतन्य महाप्रभु इस जगत में अवतीर्ण होने का पहले माधवेंद्र पुरीपाद, ईश्वर पुरीपाद आदि जो है, ईश्वर पुरीपाद, माधवेंद्र पुरीपाद, बिल्लमंगल ठाकुर, सारे के सारे पहले भेज दिया। ये लोग आके क्षेत्रों को निर्माण किया। महाप्रभु आने का पहले क्षेत्रों निर्माण किया। और गौड़ीय संप्रदाय में, माधव गौड़ीय संप्रदाय में श्री माधवेंद्र पुरी को कृष्ण प्रेम पूर्व बोला जाता है। और भक्ति कल्पतरु का ये पहला अंकुरोद्गम, भक्ति कल्पतरु का पहला अंकुरोद्गम माना गया। जयो श्री माधवेंद्र पुरी कृष्ण प्रेम पूर भक्ति कल्पतरुर तेह प्रथम अंकुर। ये भगवान का इच्छा का अनुसार हुआ, ये भगवान का इच्छा का अनुसार हो पाया। चैतन्य महाप्रभु का इच्छा का अनुसार माधवेंद्र पुरीपाद, ईश्वर पुरीपाद आदि सारे जगत में आए हुए हैं। और महाप्रभु जी ने दिखाया भक्ति कल्प तरु तिह प्रथम अंकुर, पहला अंकुरोद्गम माधवेंद्र पुरीपाद का अंदर दिखा गया। ये भी भगवान का इच्छा का अनुसार। से ईश्वरपुरी रूपे अंकुर पुष्टो हईलो। श्रील माधवेंद्र पुरीपाद अपना शरीर छोड़ने का पहले, श्रील माधवेंद्र पुरीपाद अपना शरीर को छोड़ने का पहले ईश्वर पुरीपाद को अपना सारे के सारे संपत्ति देके गया। ईश्वर पुरीपाद का अंदर में माधवेंद्र पुरीपाद प्रेम का सब कुछ देके, जितना सारे संपत्ति है सब देके गया। क्यों? माधवेंद्र पुरीपाद का सेवा किया ईश्वर पुरीपाद, निरंतर सेवा करते हुए गुरुदेव का अंतरंगो सेवक, ऐसा विचार। जय माधवेंद्र पुरीपाद कृष्ण प्रेमपुर भक्ति कल्प तरुत्य प्रथम अंकुर। श्री ईश्वरपुरी पाद का रूप से पहले अंकुर पुष्ट हईलो, आपने चैतन्य माली स्कंद उपजिलो। चैतन्य माली स्वयं है और प्रेम कल्पतरु वृक्ष भी उन्होंने खोद लाया है वैकुंठ से।
खुद रोपण किया है। श्री ईश्वरपुरी रूपे अंकुर पुष्ट हईल आपने चैतन्य माली स्कंद उपजिल। धीरे धीरे अंकुरोद्गम होके चैतन्य महाप्रभु स्वयं माली का काम किया। स्कंदो मोटा मोटा डाल उत्पन्न हुई। निज अचिंत शक्ति माली होइया स्कंद है। यद्यपि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, यद्यपि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, निजो चिंता शक्ति अपना चिंता शक्ति के द्वारा माली होकर वृक्षों को पुष्ट पुष्ट बनाने के लिए यद्यपि स्वयं वृक्षों को लाए हैं गोकुल धाम गोलोक से, फिर भी माली हो गया स्कंदो है, अपना स्कंद हो गया सपोर्ट के लिए। यद्यपि यही वृक्ष को लाया है, अपराकृत जगत से गोलोक वैकुंठ से प्रेम का कल्पतरु वृक्षों स्वयं लाए हैं, फिर भी वृक्षों को पुष्ट हरा भरा पुष्ट बनाने के लिए निजो इच्छा शक्ति माली होइया स्कंदो है। खुद माली का काम किया और खुद स्कंद हो गया। स्कंद होके सपोर्टिंग वृक्षों को आगे बढ़ाया, आगे बढ़ते रहे। निजो अचिंत शक्ति माली होइया स्कंद है। सकल शाखार से स्कंदो मूल आश्रय, से स्कंदो सकल सब शाखा का मूल आश्रय। एक मूल निकाला है मूलकांडो, उससे दो हरा भरा ये जो दोनों तरफ से निकल गया ब्रांच, स्कंदो निकल गया। ब्रह्मानंद पुरी और ब्रह्मानंद भारती, ब्रह्मानंद पुरी और ब्रह्मानंद भारती, विष्णुपुरी केशवपुरी, पुरी कृष्णानंदो से नृसिंह तीर्थ और पुरी सुखानंदो, ये सब এই नवमूल निकोसिलो वृक्ष मूले, वृक्ष मूल से 9 ब्रांचेस निकल गया कांडो। এই नवमूल निकोसिलो वृक्ष मूले, এই नवमूले वृक्ष कोइलो निश्चले। ये 9 किस्म का जो ब्रांच निकाला, इसमें वृक्षों का स्टेबिलिटी दिया कि प्राण संचार किया। परमानंद पुरियार केशव भारती, ब्रह्मानंद पुरियार ब्रह्मानंद भारती, विष्णु पुरी केशव पुरी, पुरी कृष्णानंदो से नृसिंह तीर्थ और पुरी सुखानंदो, ये सारे 9 ब्रांचेस निकल गया। ए नवमूल निकोशिलो वृक्ष मूले, এই নবমূলে वृक्ष करिल निश्चले। ये वृक्षों का स्टेबिलिटी, वृक्षों का जो पावर, इसको बढ़ाया। 9 मूल, मध्यमूल परमानंदपुरी महाधीर, ये मध्यमूल इसका नाम है परमानंदपुरी महाधीर। स्कंदों का ऊपर बहु शाखा धीरे धीरे, इसका मतलब है चैतन्य महाप्रभु का जो चैतन्य महाप्रभु की जो परंपरा के जो धार निकल गया ना, एक एक करके ब्रांचेस, स्कंदेर ऊपरे बहु शाखा निकासिल, ऊपरी ऊपरी शाखा असंख्य हईल। एक वृक्ष का कांडो से मूल ब्रांच से निकल गया, धीरे धीरे असंख्य निकल गया। 20-20 शाखा कोरी, एक एक मंडल, कुछ हिसाब किताब है, मंडल बद्धो ये सब हिसाब है। स्कंदेर ऊपरे बहु शाखा निकसिलो, स्कंदों का ऊपर बहु शाखा निकल गया। ऊपरी ऊपरी शाखा असंख्य हईल, इसका ऊपर बहुत सारे ब्रांचेस निकल गया। मतलब ये है चैतन्य महाप्रभु जी का कृपा
अपना भक्तों का माध्यम धीरे धीरे चारों ओर फैल गया। 20-20 शाखा कोरी एक एक मंडल। एक मंडल का हिसाब है जैसे 1 डजन। 1 डजन मीन 12 पीस रहेगा, 1 डजन। या ये जो विचार बताया मंडल, कुरुक्षेत्र बैटलफील्ड में अक्षौहिणी, इसका भी हिसाब है। एक अक्षौहिणी मतलब कितना लाख सैन्य है, दल बद्ध अक्षौहिणी, ये सब विचार है, जो भी है। 20-20 माने कुरी 20-20, 20-20 शाखा कुरी एक एक मंडल। एक एक मंडल मतलब 20-20 शाखा, 20 महा शाखा हईल ब्रह्मांड सकल। महा शाखा हईल ब्रह्मांड सकल। समस्त ब्रह्मांडे भरपूर शाखा पोशाखा छा गया। एक को शाखाते बहु उपशाखा शत शत, एक एक शाखा ब्रांच, एक एक शाखा ब्रांच का अंदर में जितना सब उपशाखा निकल गया सब। एक को शाखाते उपशाखा शत शत, एक एक शाखा का अंदर में उपशाखा 100 किस्म का उपशाखा निकल गया। जतो उपजिलो शाखा के गणिबे कतो, जितना शाखा उपशाखा निकल गया उसका हिसाब किताब कौन करे, कौन करने जाए इतना सारे के सारे। एक को शाखा थे उपशाखा शत शत, जतो उपजिलो, जितना उपशाखा निकल गया ना ब्रांचेस, तो कौन गिनती करेगा। के करिबे कतो, मुख्य शाखा गणेर नाम गणन जो इम्पोर्टेंट है, जो बड़ा बड़ा इम्पोर्टेंट है मुख्य, ये लोग का नाम हम काउंट करेंगे, बाकी किसी का नाम बोलना संभव नहीं है। बाकी किसी का नाम बोलना संभव नहीं, बहुत बड़ा मुख्य शाखा गणेर नाम गणन। मुख्य माने प्रिंसिपल, ऑल जो ब्रांचेस है इसका नाम हम गणना करें, बाकी संभव नहीं, बाकी संभव नहीं। जतो उपजिलो शाखा के करिबे गणन, मुख्य शाखा गणेर नाम गणन। आगे ता करिबो सुनो वृक्षेर वर्णन। अभी वृक्ष, प्रेम कल्पतरु का वृक्ष का वर्णन किया है। प्रेम कल्पतरु वृक्ष का ये वर्णन किया है। मूल स्कंदे दूधी के दूसरे स्कंदो, मूल स्कंदो दोनों तरफ दो, मुख्य शाखा गणेर नाम गणन। आगे ता करिबो सुनो वृक्षेर वर्णन। इसका बाद हम वृक्ष का वर्णन करेंगे। मेन प्रधान शाखा उसका अंदर कौन कौन है, ये विचार करना पड़ेगा। ये विचार हम पहले बताएंगे। मुख्य शाखा गणेर नाम गणन। आगे ता करिबो सुनो वृक्षेर वर्णन। वृक्ष का वर्णन कर रहा है। मूल स्कंदो ये दो तरफ दो शाखा निकल गया। मूल स्कंदे दुई दिके दुईटी स्कंदो, नित्यानंद और अद्वैत चंद्र। मूल जो स्कंदो है इसका शाखार ऊपरे हईल वृक्ष दुई स्कंदो, एक नित्यानंद, एक अद्वैत चंद्र, एक नित्यानंद। यही दो स्कंदों का अंदर में कितना शाखा ब्रांचेस निकल गया। नित्यानंद और अद्वैत, इनके नित्यानंद और अद्वैत एक एक से बहुत काउंटलेस शाखा निकल गई। यही दो स्कंदो शाखा उपजिलो। इसके बाद उपशाखा जो है, इसके बाद जो उपशाखागण है, जगत विस्तृत हो गया। यही दो स्कंदे शाखा जो तो उपजिलो,
तार उपशाखागणे जगत छाइल। और इनके अद्वैत गोसाई नित्यानंद का शाखा उपशाखा ब्रांचेस स्टील ब्रांच, अब ब्रांच से फिर निकल गया, इस ब्रांच से फिर निकल गया, ऐसा करके शाखार ऊपरे हইল বৃক্ষ দুই স্কন্দ, এক অদ্বৈত নাম আর নিত্যানন্দ। এই দুই স্কন্ধে শাখা যত উপজিল তার উপশাখা উপশাখা গণে जगत तार उपशाखा शाखा अद्वैत गोसाई नित्यानंद, ये लोग के जो परंपरा में शाखा उपशाखा पूरा जगत को छा दिया। बड़ो शाखा उपशाखा और बड़ो शाखा उपशाखा तार उपशाखा। बड़ो शाखा पहले स्कंद है, उससे शाखा निकल गया, इस शाखा का अंदर में और निकल गया। এই দুই স্কন্ধে শাখা যত উপজিল তার उपशाखा गणे जगत व्यापिल, तार जगत सारे के सारे व्याप्त हो गया। बड़ो शाखा उपशाखा, बड़ो शाखा उपशाखा तार उपशाखा जगत व्यापिल, तार के करीबे लेखा। इसका बारे में कौन लेखा करेगा, क्योंकि व्यापक शिष्य प्रशिष्य और उपशिष्यगण, शिष्य प्रशिष्य और उपशिष्यगण। शिष्य मतलब कोई गुरु का, शिष्य मतलब कोई गुरु का शिष्य है, प्रशिष्य मतलब गुरु का शिष्य का शिष्य। कोई शिष्य गुरु जी का शिष्य है, ठीक है, गुरु जी का शिष्य है, इसका नाम है शिष्य। गुरु जी का शिष्य, इसका नाम है प्रशिष्य। उसके बाद उपशाखागण, उपशाखा, उसके बाद उपशाखागण, बहुत सारे उपशाखा है, शतो शतो। যত উপজিল শাখা के करीबे कत, के गणिबे कत, के कत, कौन कितना गिनती करेगा, कौन कितना गिनती करेगा, ये अनएंडिंग। ये कितना, कोई अगर गिनती करना चाहे, कोई अगर गिनती करना चाहे तो कहाँ तक चलेगा। যত উপজিল শাখা কে করিব বর্ণন, একৈক শাখাতে, একৈক শাখাতে উপশাখা শত শত, যত উপজিল শাখা কে করিবে কত, কে গণিবে কত। মুখ্য মুখ্য শাখাগণের নাম গণন आगे ता करीब सुनो वृक्षेर विवरण। पहले हम ये वृक्षों का बारे में बताएंगे, पहले ही बताया था। शाखार ऊपरे हইল वृक्ष दुई स्कंद, एक अद्वैत नित्यानंद। इसके बाद दुई स्कंदे शाखा जो तो उपजिल उपशाखा, शाखा उपशाखा पूरा ब्रांचेस, बड़ो शाखा उपशाखा तार उपशाखा, एक बड़ो शाखा ब्रांच, उसके बाद उपशाखा, उसका बाद फिर उपशाखा, उपशाखा बड़ो शाखा उपशाखा तार उपशाखा, उसका भी फिर उपशाखा, बड़ो शाखा निकल गया, इसका बाद उपशाखा, इसका बाद ये उपशाखा से भी और निकल गया, बड़ो शाखा उपशाखा तार उपशाखा जगत व्यापिलो, तार के करीबे लिखा, कौन लिखेगा इसका बारे में। शिष्य प्रशिष्य और उपशिष्यगण, যত शिष्य, उसका बाद उनके शिष्य, उसका बाद इनके भी शिष्य, शिष्य प्रशिष्य और उपशिष्यगण सारे भरपूर हो गया जगत में। जगत व्यापिलो, तार नहीं को गणन, को गिनती करना मुश्किल है, इतना निकल गया, गिनती करना मुश्किल है। उड़म्बर माने फिग ट्री, फिग ट्री, उड़म्बर माने ये जो नदी का उस पार एक वृक्ष है, उसमें एक स्पेशल किस्म का फल लगता है, डुमुर, डुमुर बांग्ला में डुमुर बोलता है, अंग्रेजी में फिग, फिग, फिग बहुत अच्छा फूड है, जैसे एवोकाडो कोई जानता नहीं, नोबडी नोज, इट्स सो इम्पोर्टेंट, सो विटामिन। ऐसा वो जो आपका फिग है,
बहुत सस्ता फल है, सस्ता, यहाँ वहाँ पड़ा रहता है. Nobody care to collect and cook, throw. But Srila Bhaktivedanta Madhav Goswami Maharaj, Guru Maharaj, they used to cook it daily. Very small fruit they take is very number one for kidney. Spoiled kidney. For them very good. You can open and find the same structure like kidney. It is the indication of Bhagavan. It is the indication, like walnut. If you want, it's just like brain. Bhagavan giving indication. The feel still foolish people cannot understand. Bhagavan giving indication. This for this reason, this for this reason. This way, বড় শাখা উপশাখা তার উপশাখা জগৎ ব্যাপিল তার কি করিবে লেখা শিষ্য guru শিষ্য then again he is making disciple like Samananda Parivar from Gauranga showing that I am coming from Madhavendra Puri. Actually Gauranga is the originally still acting as a skandha supporting factor. Actually from Gauranga Mahaprabhu, you can find our Gauridas Pandit. Gauridas Pandit, from there you can find Hidaya Chaitanya. From Hidaya Chaitanya, you can find Samananda Prabhu. From Samananda Prabhu, you can find Rasikananda Prabhu. From Rasikananda Prabhu, this way, all countless branches. Countless, you cannot count. Countless branches all over. So this way, Krishnadas Kaviraj Goswami giving the same example, what I like to give. Udumbar Bhiksha Jano Phali Sarvangi. Like the fig tree. Of course, fig tree we can take the wood for jagya. Jaggaduma. We are cutting. Not all. Jaggaduma, special. Jaggaduma, special type of. Udumbar Bhiksha Jano Phali Sarvangi. All countless fruits are there. You cannot count. Ei mato bhakti bhikkhe. Is it a devotional tree? Is a devotional tree. Now, Bhaktivinoda Thakur, Gaur Kishore Baba, Prabhupada, Bhaktivinoda Puri Goswami Maharaj, from there, if I am authentic, then I am in line. Otherwise not. If I am authentic in their line, then it's okay. Otherwise not. So, like the fig tree, all bhakti, lata bij, now growing, after that bhakti bhiksha, all around. Bhakti bhikshe sarvatra phal lage. Wherever going to get the right link of that parampara, then he can get the same prema. Prema. Sarvatra phal lage. Mool skande shakhar upasaka gone. Mool skando, the main tree. After that, skando, mool skando, after that branches, after that still branches here and there, still branches here and there, this way. Mool skander shakha or upasaka gone. Lagilo je prem phal amrito ke jine. Mool skander shakha or upasaka gone. Mool skando, there are branches and sub-branches. Krishnadas Kaviraj Goswami is speaking, they are getting prema. All prema, absolute prema. Mool skande shakha or upasaka gane, lagilo je prem phala. Ah, what a kind of beautiful prema phala, prem fruits, which can beat amrita, available in heaven, which can beat. Mool skande shakha or upasaka gane, lagilo je prem phal. All prema phal, fruits coming, which can beat amrita. Pakilo se prem phal amrita madhur. Same thing you can find in Srimad Bhagavad Gita Mahapuran, first canto, second.
निगम कल्पतरुर्गलितम फलम सुखमुखाद अमृतदव संयुतम। द सेम प्रेम कल्पतरु, भागवत वृक्ष, all branches प्रेम। So this way मूल स्कंदे शाखा और उपशाखा गणे लागिलो जे प्रेम फल अमृत के जिन्हें अमृतो is used in front of them. Those fruits become very ripe. পাকিলো যে প্রেম ফল অমৃত মধুর আর বিলায় চৈতন্য মানি নলয় নালয় মূল। মূল মানে price, without any price. That prem fall vriksha giving so many countless fruits. As Chaitanya Mali, Chaitanya Mahaprabhu acting as Chaitanya Mahaprabhu कैसे? Chaitanya Mahaprabhu क्या कर रहे हैं? प्रेम फल जो है चैतन्य महाप्रभु वितरण कर रहे हैं। बड़ो शाखा उपशाखा तार उपशाखा जगत व्यापिलो तार के करीबे लेखा शिष्य प्रशिष्य उपशिष्य जगत व्यापिलो तमाम जगत को घेर लिया। जैसे उड़ुम्बर वृक्षो फल लगता है पूरा वृक्षों में, मूल स्कंदों का शाखा उपशाखा इसमें प्रेम फल अमृतों को भी तुच्छ बना दे। अब पाकिलो जो प्रेम फल, ये प्रेम फल पक गया अमृत मधुर। आज चैतन्य माली, माली माने गार्डनर, चैतन्य माली ये मधुर प्रेम फल को वितरण करते रहते हैं और कोई मूल पैसा नहीं ले रहे हैं। नालय मूल, मूल मतलब प्राइस, कोई मूल्य नहीं ले रहा है, दे रहा है। जगते जतो आछे धन रत्न मणि, इस जगत में जितना सारे धन रत्न मणि है, जितना सारे तमाम जगत का जितना सारे मेटेरियल प्रॉपर्टी है, ये जो मेटेरियल वर्ल्ड है इसमें जितना सारे हीरे मोती हैं, जितना सारे ज्वेल है, इस जगत में जितना सारे धन रत्नमणि, जितना धन दौलत रत्नमणि ज्वेल्स है सब इकट्ठा कर दो, इकट्ठा वन साइड और इकट्ठा एक फूल एक फल प्रेम फल, इसका कीमत बहुत है क्योंकि तो अपराकित, ये तो प्राकृत है ना, ये प्रेम फल तो अपराकित है। अपराकित जगत ऑलवेज पॉजिटिव और ये प्राकृत जगत इसमें जितना भी होल वर्ल्ड whatever प्रॉपर्टी है, अमेरिका रसिया फ्रांस wherever, even under the 20,000 league under the sea, जहां जितना सारे धन मनी मणिक को जो कुछ है, you can gather together। लेकिन ये प्रेम फल जो है, ये प्रेम फल का मूल्य कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं, ये प्रेम फल का जो कीमत है, ये प्रेम फल का जो कीमत है, इसका बराबरी नहीं हो सकता। होल वर्ल्ड, whatever property was there in the world before the creation, in the middle of the creation, when the earth planet getting maturity, so that jivas can come there and stay. जितना सारे in the beginning and when जब पृथ्वी ध्वंस हो जाएगा, same property, only resource mobilization, only advanced country or science technology can help you to mobilize all resources. Whatever property was there in the beginning of this creation, in infinity Brahmanda, same property now. Even after destruction, where can go? Same property. Only you take the money from England, and but this is my property. Speaking. Property is same. So, all कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं, जितना सारे धन संपत्ति है, जितना सारे धन संपत्ति है जगत का, इकट्ठा कर लो और एक तरफ
ये प्रेम फल का एक फल रख दो, ये पॉजिटिव है और नेगेटिव है, इसका कोई कीमत नहीं है। इसीलिए एक प्रेम फल, वन फ्रूट्स ऑफ प्रेमा कैन नेवर बी कंपेयर्ड विथ ऑल प्रॉपर्टीज, ऑल इन्फिनिटी वर्ल्ड इकट्ठा, कैन नॉट बी। मांगे व ना गए, मांगे, कोई अगर मांग रहा है हमको फल दे दो, कोई नहीं मांग रहा है, मांगे व ना मांगे के हो, पात्रो व अपात्रो, इहार विचार नहीं जाने, दय मात्रो। चैतन्य महाप्रभु गार्डनर प्रेम फल वितरण कर रहा है, वो विचार नहीं कर रहा है, ही इज नॉट सुइटेबल पर्सनैलिटी, ही इज सुइटेबल, ही इज वर्दी, अनवर्दी नॉट एवरीबॉडी। मांगे व ना मांगे के हो, पात्रो व अपात्रो, द सेम श्लोका आई कैन डिस्कस टुमारो। पात्रा पात्रो विचारानम न कुरुते न स परम वीक्षते, देव देव व अदेव, दिस श्लोका आई कैन डिस्कस टुमारो। वन फ्रूट, एक प्रेम फल, जितना सारे धन संपत्ति हैं इसको इकट्ठा करने से इसका साथ एक नहीं हो। मांगे मास, कोई अगर मांग रहा है हमको फल दे दो, कोई नहीं मांग रहा है, दया मात्र। पत्रा पत्र विचारानाम न कुरुते न स परम वीक्ष, दया दियो विमर्शक न ही नव कालो प्रतीक्ष प्रभु। कोई मांग रहा है, कोई नाम नहीं मांग रहा है, सब कोई को दे दो। कोई क्वालिटी किसका अंदर में है, कोई क्वालिटी किसका अंदर में नहीं है, फिर दे दो। अंजलि अंजलि बोले महाप्रभु टेकिंग दिस फ्रूट्स, महाप्रभु टेकिंग दिस फ्रूट दिस वे एंड थ्रोइंग, महाप्रभु टेकिंग फ्रूट दिस वे, ऑल अंजलि अंजलि भरी विथ ग्रेप फुल, टेकिंग फ्रूट्स एंड गिविंग। अंजलि अंजलि भरी फैले चतुर्दिके, ऑल अराउंड, ले all around. And Doridro, philosophical discussion here. Doridro kudaiya khaye malakar hase. Those who are poor, they are collecting their fruits and eating, and Mahaprabhu, I mean the gardener laughing. Here Doridro mean, Doridro mean poor. Poor doesn't mean that poor, no money. Poor means those who have no prema, bhakti, nothing, they are poor. So, कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने लिखा है, दरिद्रो कुराइया खाए। दरिद्रो ये फल फेंक दिया महाप्रभु, सब उठा कर खा रहा है। दरिद्र कुराइया खाए, मालाकार हंसे। मालाकार में गार्डनर, महाप्रभु हंस रहा है। दरिद्रो जस्व संतुष्टो कृपनो तु अजितेंद्रियो। दरिद्रो जो असंतुष्ट हो, जो दुनियादारी का चीजों में, जो लोग दुनियादारी का चीजों में फंसे हुए हैं, जो लोग दुनियादारी का चीजों में फंसे हुए हैं, वो दरिद्र है। दरिद्र जो हर वक्त असंतोष है, हर वक्त असंतोष है, जिसका अंदर में खाना नहीं है, पढ़ना नहीं है, अगर है भी तो अच्छा नहीं है, ऐसा हर वक्त शिकायत है। दरिद्र जस्तु असंतुष्ट हो। दरिद्र मीन असंतोष, जिसका अंदर में भक्ति नहीं है वो असंतोष है। ये लोग अभी ये फल को उठा कर खा रहा है, महाप्रभु का कृपा से लोग का प्रेम हो रहा है। दैट इज टोटली एक्सक्लूसिव अरेंजमेंट। एट प्रेजेंट यू कैन नॉट अंडरस्टैंड। चैतन्य महाप्रभु जब प्रकट विहार किया, दैट वाज वेरी स्पेशल डिस्काउंट। नॉट दैट टुडे विदाउट भजन यू कैन गेट, दैट वाज वेरी स्पेशल केस। Mahaprabhu wanted to say, patra patto, not now, to do bhajan. Malakar, Doridro, Kuraiya Khai, Malakar Hase. The gardener, Chaitanya Mahaprabhu, laughing by watching their,
interest to collect fruits and eating, okay. Malakar kohe, suno bhikkho parivar. Malakar, who is a gardener, taking care of the garden, he is speaking Vriksha Parivar. Vriksha Parivar, you know? Vriksha Parivar, you know? Somebody took trouble some days, some year before. He wanted to make Prabhupada Parshad. All. One tree, Prabhupada Parshad, and there. Totally it's not good. It's not good, you should not do it. They do it. There is no lineage, nothing. They don't understand, whimsically they make one tree. But here Krishnadas Kaviraj Goswami is speaking, it is authentic. It is authentic. Mahaprabhu, Vriksha Parivar mean, Mahaprabhu Vriksha Parivar mean, all the members of that Vriksha. Vriksha Parivar. Vriksha Parivar means family. Vriksha Parivar means, it is philosophical idea. That Vriksha Chaitanya was making main branch, after that sub branch, that, all around, all the families. They are Vriksha Parivar. Related with that Vriksha, the idea Mahaprabhu wanted to establish to distribute prema, that Vriksha. So, Malakar, gardener, Mahaprabhu speaking, philosophical discussion. Malakar kohe, suno Vriksha Parivar, all the members of this family, of this tree, here, pay attention. Mul Sakha, Upasakha, Jotek Prakar, all branches and sub-branches, everything, whatever it is. Alaukik Vriksha kare sarvendriya karma. Alaukik supernatural tree, transcendental tree. Alaukik Vriksha kare sarvendriya karma. It is tree, but that tree, ये जो वृक्ष है, ये साधारण मामूली वृक्ष नहीं है. ये जो वृक्ष हमने बताया, ये साधारण मामूली वृक्ष नहीं है. ये alive, like your body can see, hear, talk, everything. That vriksha is, full of life. Alaukik vriksha kare sarvendriya karma. What your hand, leg, eyes, nose can do, that vriksha can do everything. Like same. Alaukik vriksha kare sarvendriya karma. Sthabor hoiya dhare jangamet dharma. Externally it seems it is not mobile object. And it is actually cannot move. Sthabor jangam. Jangam means those can move. And sthabor means fixed, like trees, everything cannot move. Sthabor hoya, though externally it is showing inert object. Sthabor. Externally you cannot see any life possible here. It's a matter. How I can expect this can talk, this can walk. It's a matter. Inert object. That inert object, यहाँ लिखा है, sthabor. Externally it seems that is sthabor, inert object. But still, it is showing all the properties of that prani, all wild prani. Jangamet dharma. Jangamet, those who have life. Prominent life factors are visible in them. Ei vriksher ango hoy sab chetan. These are tree, whole branches, leaf, and whatever there, all full of life. Full of life. Ei vriksher ango hoy sab sachetan. All full of consciousness. Badiya bapilo sabe
Bariya Bapilo Sabe Sakol Bhuvan. This Vriksha gradually, it seems the Suddha Bhakti not propagating. But someday by the desire of Nityananda, who knows? Kaun jane? Kaun jane? Maybe it is the desire of Nityananda to destroy and make fresh. Nobody like to accept Suddha Bhakti. Alaukik bhikkha kare sarvendiya karmo, stabor, hoya dhare jangamed dharmo, e vriksher anga hoy sab sachetan, bariya bapilo sabe sakal bhuvan. Sakal bhuvan, all around this cosmic world, all spreading. Really so, because Bhagavad Dharma is Atma Dharma. Bhagavad Dharma, Atma Dharma, and Bhagavad Dharma, another name is, what do you say? Bhagavad Dharma, we say, in general, what do we say? In general, what name we say? Bhagavad Dharma. Or, what do you say? Generally we say, Atma Dharma, Jaiva Dharma, we say, Prem Dharma, all we say, Sanatan Dharma, we say na, Sanatan. The general and basic conception, the general and basic conception of Sanatana Dharma is Bhagavad Dharma. But other people going to make it very easy. They are going to accept a very easy way. They say, we are doing also Sanatana Dharma. Not that. Those who are doing Kali Bhajan, they also we are Sanatana. Not that actually. Sanatana Dharma most basic conception is Bhagavad Dharma. But they like to use it for general. Oh, it's coming from Veda. So it's Bhagavad Dharma. We say. So Sanatana Dharma mean, what is the meaning? Sanatana Dharma का मतलब क्या है? सनातन धर्म का मतलब है सदा तनोति इति सनातन धर्म. Grammatical. Sada means always, tanoti propagating, sada means always, or tanoti means propagating is called Sanatana Dharma. That is called Bhagavad Gita. So it's not wrong. It's propagating, maybe very slowly. Who knows? Infinity period. Who knows? There can be devotee, many devotees in future. Who knows, no? So, a big Badiya Bapilo, this tree gradually increasing all around the world. This tree increasing gradually. A briksher ango sab hoy sab sachetan Badiya Bapilo sabe sakal bhuvan. Ekla, now Mahaprabhu requesting everybody, I am the gardener alone, where I can go to distribute. Better you all can help me. आप लोग भी help करो मेरा साथ. फल ले लो, लाओ, ले जाओ. आप यहाँ distribute करो, आप यहाँ distribute, आप उधर distribute करो. I am alone ना. I can take fruits. And how? Where I can go? So, एकला मालाकार आमी कहाँ जाऊँ? Where I can go around. Akela malakar, I am one gardener. So you all help me to distribute prema. The inner meaning, philosophical meaning, I can discuss tomorrow. That is related with Nityananda Prabhu Namhatta, that is related with that. Tomorrow I can discuss. Ekla malakar, ami kaha jabu, ekla ba koto phol, pariya bilabo, ekla uthaiya dite hoy parishram, केहू पाए केहू ना पाए रहे मने भ्रम. आई एम एलोन, हम अकेला हैं. कहाँ हम जाए फल को उठाकर वितरण करने के लिए. तुम एक काम करो, हमको हाथ बटाओ, आओ सब ले जाओ फल वितरण करो. हम अगर अकेला दे, कोई किसी को मिले किसी को ना मिले, कौन पता नहीं है. एकला मालाकार आमी कत फल खाबो. हम अकेला है, कितना फल खाएगा.
ऐसा करके कंक्लूजन ड्रॉ किया है कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने एक अजीब सा, एक वेरी इफेक्टिव फिलोसॉफिकल कंसेप्शन, दार्शनिक व्याख्या, if we discuss in detail, then we can understand what he wanted to mean by distributing fruits and what is the present distribution of Harikatha. You can understand. आज यहाँ तक चर्चा का विश्राम रखे, काल यहाँ से चर्चा शुरू करेंगे, क्षमा करे। 10 जो श्लोक देके हमने शुरुआत किया था, वो श्लोक क्या है? जो श्लोक है, वैगुण्य कीट कलितो पैशुन्नो ब्रोण पीड़ितो दैनार्णव निमग्न हम श्री चैतन्य वैद्यमाश्रहे वांछकल्पतरुष की बासिंद पतितानंग पावन वैष्णव्यो नमो नमः।